यहाँ पे मेरी बात सुनो ध्यान से आप सारे बच्चे। ये चैप्टर मुझे ये बताओ, विपन, विपन नाम है क्या? शीम द वोल्फ बॉय, क्या आपने ये चैप्टर रीड किया है? महक बताओ बेटा। सर अच्छा सर ये हमें करवाया गया है, मंजीत मैम ने करवाया था। ओके, तो मैं भी यही चैप्टर करवाता हूँ आपको, हमारी रिवीजन भी हो जाएगी, पता भी लग जाएगा हमें, ठीक है सर? हाँ, इसको मैं करवा रहा हूँ आपके लिए। और बच्चे तो आते हैं, थोड़े थोड़े ही आते हैं, अब क्लास के बच्चे बहुत कम आते क्लास में अटेंड करने। अब पता कितने बच्चे आए? 4 बच्चे आए टोटल क्लास में। कौन पढ़ेगा, कौन रीड करेगा? महक, महक रीड करेगी। Okay. Shame the wolf boy. Family is important to all cultures. In a family, members always look after one another, but sometimes people ignore their family for various reasons. This is a story from Ujibwa, a Native American tribe about a small sick boy is abandoned by his brother and sister after their parents' death. A lone lodge stood on the banks of a lake in a remote place one evening when the sun was about to set. An elder daughter, two sons, and a wife stood around the bed of a man who was about to die. The family had tried all kinds of medicines now by the Ojibwa, but nothing could save the man now. The dying man at the end gained the silvers of a strip from the fresh wind blowing through the door of the lost. He whispered to his family, I decided to bring you all to their emotional life so that may live in a peace away from the evil ways that many people follow. There is unkindness, irritated, and violence surrounding our people. By living away from them, I protected your innocence. I have protected you from becoming selfish and proud. It has not been easy to stay away from others. We all have suffered from a lot of discomfort, but I tried my best feed to you all and look after you. But now I am dying. Your mother not live a long time and will die soon after me. My children, you will be left alone to look after yourselves. I give you charge to look after your mother and your youngest brother who is not strong. I charge you never to forsake your younger brother. As soon as the words ended, the spirit of the man took a flight. The two older children looked after their mother and the youngest brother. After 6 months had passed, the mother to die. The two brothers and one sister were left alone to look after them. Time it easy for them and his brother to take care of his family, but soon he became restless and wanted to do things for himself. He decided to leave his sick brother under the care of his sister and go out to make his mark in the world. The elder brother married after some time and forgot about his promise to his stepfather. Soon the sister बेटा always रुको, तुम तो सारा ही पढ़ दो आप तो रुक जाओ, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, ठीक है जी। अब देखिए, शीप द वोल्फ बॉय, ये है जी वोल्फ बॉय है, उसकी कहानी है, उसको ही रीड करना है हमें।
फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द कल्चर्स। सभी के जो लोगों का कल्चर है, रीति रिवाज है, वहां पर परिवार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। इन ए फैमिली, परिवार के अंदर, मेंबर्स ऑलवेज लुक आफ्टर वन अनदर। परिवार के अंदर क्या होता है, एक दूसरे की हम क्या करते हैं जी, देखभाल करते हैं। जैसे भाई बहन की करता है, फादर मदर की करता है, ऐसे ग्रैंड सन अपने ग्रैंड फादर की करता है। जैसे एक दूसरे की हम हेल्प भी करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, कई बार पीपल इग्नोर देयर फैमिली फॉर वेरियस रीजंस। कई बार आप अपने परिवार को इग्नोर कर देते हो, बहुत सारे रीजन होते हैं उसके पीछे। दिस इज द स्टोरी फ्रॉम द ओजीबावा। ओजीबावा, a Native American tribe, about how a small and sick boy is abandoned by his brother and sister after their parents' death। अब देखिए यहाँ पर एक कहानी है जी। ओजिबा एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब है। ट्राइब होता है आदिवासी। ये इनका आदिवासियों का कबीला था। और एक कैसे एक फैमिली ने, एक छोटा सा लड़का था जी, बीमार थोड़ा सा, उसको उसके परिवार ने, उसकी ब्रदर ने, उसकी सिस्टर ने उसको अबैंडन मींस होता है छोड़ देना। जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई तो उसके बाद उन्होंने उसको अकेला छोड़ दिया, उसकी फैमिली ने। ये लॉन्ग लॉज है जी। एक लॉन्ग लॉज का मीन्स होता है, लॉज मीन्स होता है हेयर, यानी कि यहाँ पर इन नेटिव अमेरिकन होम, एक जैसे पुराने समय में घर बनते होंगे वैसे एक घर था, बिल्ट ऑफ लॉग। लॉग मीन्स होता है बेटा लकड़ी का बना हुआ। लॉज था ये, एक घर था। लॉज मीन्स घर, घर है और किस चीज का बना हुआ, लकड़ियों का बना हुआ। ये आप पीछे भी देख सकते हो पिक्चर में भी, ये जो घर है वो बना हुआ है किसका, लकड़ी का। A lone lodge stood on the banks of a lake in the remote place। एक ना दूर का कोई इलाका है, काफी दूर का, वहां पर एक है जी लोन लॉज। वहां पर अकेला एक लॉज है, घर है, जो खड़ा हुआ है किसी झील के किनारे पर। वन इवनिंग, एक शाम, when the sun was about to set, जब सूरज डूबने वाला था, and एल्डर डॉटर, एक बड़ी बेटी, टू सन्स, दो बेटे, एंड ए वाइफ, एक पत्नी, स्टूड अराउंड द बेड, बेड के चारों तरफ खड़े हुए थे। ऑफ अ मैन, एक आदमी का बेड था, हु वाज अबाउट टू डाई, जो मरने वाला था या फिर मरने के किनारे पर बैठा हुआ था। The family had tried to all kinds of medicines known by the Ojibwa। देखिए जो ओजिबा जो ट्राइब था, इस की फैमिली के जो मेंबर थे, उन्होंने सभी जो दवाई बूटियां थी, जड़ी बूटियां, हर प्रकार की मेडिसिन दी जिसके बारे में वो जानते थे। बट नथिंग कुड सेव द मैन नाउ, लेकिन कोई भी उस आदमी को नहीं बचा सका। द डाइंग मैन एट द एंड gained silver was spirit from the fresh wind blowing through the door of the lodge। अब क्या था, जो मरने वाला आदमी था अंत में उसके गेन होता है प्राप्त होना, सिल्वर है जी, ए स्मॉल थिन पीस ऑफ समथिंग हियर, ए लिटिल अमाउंट, कुछ थोड़ी सी मात्रा में उसके अंदर जैसे ना जान आ गई उसकी बॉडी के अंदर। जैसे ना शरीर के अंदर आत्मा ने से देखो, मैं जोर का झटका मारा, उसकी आत्मा के अंदर जान आई। फ्रेश हवा थी, वो बह रही थी, दरवाजा खुला हुआ था, उससे वो हवा अंदर आई। He whispered to his family, वो कुछ बोला अपनी फैमिली के लिए, अपनी परिवार को शब्द बोले। I decided to bring you all to this remote place।
मैंने डिसाइड किया था कि तुम्हें मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा इस रिमोट एरिया में, फार अवे बहुत दूर होता है रिमोट मीन्स, that we may live in peace away from the evil that many people follow। वो कहता था कि मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लेकर आया था ताकि हम शांति से यहाँ पर अपनी जिंदगी बिता पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बुरे थे, एवल वेज बहुत सारे मैंने तुम्हें बुरी जगहों से बचाया है, that many people follow जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते थे। देयर इज अनकाइंडनेस, अनकाइंडनेस क्या होता है जी, जहां पर हम बिल्कुल भी दयालु नहीं होते। इनग्रेटफुल, इनग्रेटिट्यूड होता है जी थैंकलेसनेस, जहां पर हम किसी का थैंक यू नहीं कहते, थैंकलेसनेस होती है वो सेंस लोगों में कम होती है कि आपने किसी की हेल्प की और आपको आप किसी ने थैंक यू भी नहीं बोला, एहसान भी नहीं मानता आदमी। एंड विकेडनेस, विकेडनेस होती है क्वालिटी ऑफ एविल, जिसके अंदर बुराई हो। सराउंडिंग आवर पीपल, बोलता है हमारे लोगों के चारों तरफ पर क्या क्या चीजें चल रही हैं। अनकाइंडनेस है लोगों के बीच में, इन ग्रेटिट्यूड है, थैंकफुलनेस नहीं है, थैंकलेस है पीपल, एंड क्वालिटी ऑफ एविल, बुराइयों से भरे हुए हैं हमारे लोग, आवर पीपल, बाय लिविंग अवे। अब आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, बाय लिविंग अवे फ्रॉम देम, उनसे दूर रहकर, आई प्रोटेक्टेड योर इनोसेंस, मैंने तुम्हारी जो इनोसेंस है ना, शराफत के हिसाब से मैंने आपको उससे बचा के रखा है। आई हैव प्रोटेक्टेड यू फ्रॉम बिकमिंग सेल्फिश एंड प्राउड, मैंने तुम्हें बचा के रखा था किससे, सेल्फिश से, यानी कि तुम्हें मैंने सेल्फिश नहीं बनने दिया, तुम्हें मैंने घमंडी नहीं बनने दिया, मैंने तुम्हें इन सभी चीजों से क्या करके रखा, मैंने तुम्हें बचा के रखा हुआ है। इट हैज नॉट बीन ईजी टू स्टे अवे फ्रॉम अदर्स, ये आसान नहीं होता दूसरों से अलग रहना। वी ऑल हैव सफर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट होता है जी, हम बोलते हैं इट हैज नॉट बीन इजी टू स्टे अवे फ्रॉम अदर्स, ये तो ठीक है। वी ऑल हैव सफर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, बोलता है जी हमें बहुत सफर करना पड़ा, कहाँ से जी, बहुत सारे, कहाँ से, लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इस सफर करना पड़ा, प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ा। बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू फीड यू ऑल एंड लुक आफ्टर यू, लेकिन मैंने कोशिश की थी तुम सभी को बेस्ट देने की, अच्छा खाना खिलाने की और तुम्हारी देखभाल करने की। बट नाउ, लेकिन अभी, आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ। योर मदर विल नॉट लीव लॉन्ग, इसमें बताया गया था कि लैंड को कैसे एंड विल डाई सून आफ्टर मी, उसने कहा योर मदर विल नॉट लीव लॉन्ग, तुम्हारी मदर भी अब ज्यादा देर जीवित नहीं रहेगी। एंड विल डाई सून आफ्टर मी, और मेरे बाद जल्दी भी उसकी डेथ हो जाएगी, जैसे मेरी डेथ हो रही है वैसे तुम्हारी मदर भी, मेरे पीछे पीछे उसकी भी डेथ हो जाएगी। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, यू विल बी लेफ्ट अलोन, तुम अकेले रह जाओगे, टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, तुम्हें अपनी देखभाल खुद ही करनी है, एक दूसरे की देखभाल खुद कर लेना। I give you the charge to look after your mother and your youngest brother, मैं तुम्हें चार्ज देता हूँ, मैं तुम्हें चार्ज देता हूँ कि तुम किसको देखोगे, टू लुक आफ्टर योर मदर, कि तुम्हें अपनी माँ की देखभाल करनी है, एंड योर यंगेस्ट ब्रदर, और तुम्हारे सबसे छोटे भाई की भी क्या करनी है, देखभाल करनी है। हु इज नॉट स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, वीक है। हाँ, आगे है
I charge you never to forsake. बोलता जी आई चार्ज यू, मैं तुम्हें चार्ज करता हूँ, यू नेवर टू, तुम कभी भी, forsake योर यंगर ब्रदर, कि तुम अपने भाई को कभी भी छोड़ना मत अकेला, उसकी देखभाल करते रहे, पीछे मत हटना उसकी देखभाल से। आज क्या होता as soon as the words ended, जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, the spirit of the man took flight, उसकी जो आत्मा थी उसकी शरीर से वो चली गई। took flight होता है left the body, उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, left the body। The two elder children looked after their mother, दो बड़े बच्चे थे, उन्होंने अपनी मदर को देखा, their mother and the youngest brother, और अपने छोटे भाई को देखा। After 6 moons had passed, the mother too died. 6 moons means है जी 6 रातों के बाद, 6 रातों के बाद उनकी जो मदर थी वो भी एक्सपायर्ड हो गई, उसकी भी डेथ हो गई। The two brothers and one sister were left alone, दो भाई और एक बहन पीछे रह गए थे। Look after one another, एक दूसरे की देखभाल करने के लिए। अब आगे है, for some time it was easy for the eldest brother to take care of his family, कुछ समय के लिए तो ये आसान था बड़े भाई के लिए अपनी फैमिली की केयर करना, बट soon he became restless, रेस्टलेस होता है बेटा परेशान हो जाना, एंड इम्पेशेंट हो जाना, यानी कि बिल्कुल भी बोर हो जाना, बेसब्रा हो जाना, कि वो अपनी फैमिली के लिए अब परेशान था, बेसब्र हो गया था वो, एंड वांटेड टू डू थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, और वो अपने लिए कुछ करना चाहता था। He decided to leave his sick brother under the care of his sisters and go out to make his mark in the world. उसने डिसाइड किया कि वो अपने बीमार भाई को छोड़ के जाएगा अपनी बहन के पास और अपनी कोई नया कदम उठाएगा, नाम कमाएगा इस संसार में अपना, और बीमार भाई को घर पे छोड़ के जा रहा है। देखो कितने बुरे हाल है उसके। द एल्डर ब्रदर मैरिड, बड़े भाई ने शादी कर ली, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एंड फॉरगॉट अबाउट हिज प्रॉमिस टू हिज डेड फादर, और जो उसने अपने फादर को प्रॉमिस किया था वो भी वादा भूल गया। मरते हुए फादर उसने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने फैमिली की देखभाल करूंगा। Soon the sister also grew, जैसे ही वो छोटी बहन बड़ी हुई, tired of taking care of his sick, नीचे जैसे ही जो छोटी सिस्टर थी वो भी बड़ी हो गई, वो भी थक चुकी थी अपने इस बीमार भाई की देखभाल करते हुए, एंड लिविंग ए सोलेटरी लाइफ, सोलेटरी लाइफ होता है लोनली, उसने भी अकेला रहना शुरू कर दिया था। आफ्टर ईयर्स, साल निकलते गए, ऑफ लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड्स एंड वर्किंग हार्ड, शी वांटेड टू बी इन द कंपनी ऑफ द अदर पीपल। अब क्या होगा भी साल बीतते गए और वो अपने भाई को छोड़कर चली गई थी अकेला, अपने जीवन में बिता रही थी, उसने भी अपना हार्ड वर्क किया, अपना घर बना लिया, और वो चाहती थी, शी वांटेड टू बी इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल, कि वो दूसरे लोगों के साथ
शी वांटेड टू बी इन द कंपनी, दूसरे लोगों का वो ना कंपनी चाहती थी, एक हिसाब से उनके साथ मिलना जुलना चाहती थी। एक बेटा पैरा और पढ़ूंगा, उसके बाद ये मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ, soon the sister also grew tired of, हाँ ये तो हो गया। One day after gathering some supplies, supplies होता है things such as food, medicine and fuel, कि कुछ एक दिन कुछ सप्लाई करने के बाद she told her younger brother, youngest brother, उसने सबसे छोटे भाई से कहा, dear brother, डियर ब्रदर, प्यारे भाई, आई एम गोइंग आउट टू फाइंड योर ब्रदर, आवर ब्रदर, कि मैं अपने जो बड़ा भाई घर छोड़ के गया ना, मैं उसको ढूंढने के लिए जा रही हूँ। यू शुड नॉट वंडर एनी अवे फ्रॉम द लॉज, तुम इस घर से, तुम्हें बाहर घूमना नहीं चाहिए, कहीं पर घूमते फिरते रहो, ऐसा बिल्कुल मत करना। वो अपने भाई को बोलती है, आई हैव कलेक्टेड सप्लाईज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सप्लाई कलेक्ट कर चुकी हूँ। सप्लाई में क्या था बेटा, भी मैंने तुम्हारे लिए खाने इकट्ठा कर दिया है, दवाइयाँ इकट्ठी कर दी है, और दूसरी चीजें हैं जैसे तेल है घर में जलाने के लिए, वो भी मैंने लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। वंस आई एम फाइंड आवर ब्रदर, जब मैं भाई को ढूंढ लूंगी, आई विल कम बैक, मैं वापिस आ जाऊंगी। बट द सिस्टर इंजॉयड लिविंग इन द कंपनी ऑफ द अदर पीपल, लेकिन जो उनकी सिस्टर थी वो भी इंजॉय करती थी दूसरे लोगों की कंपनी को, इसलिए वो उनको छोड़ के चली गई। शी लव्ड द अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट होता है इंटरटेनमेंट, वो भी इंटरटेनमेंट को पसंद करती, प्यार करती थी। The pleasure of the social life so much that she too soon forgot her youngest brother whom she left behind. और वो ऐसा गुम हुई मनोरंजन करने में सोशल लाइफ के अंदर कि वो अपने जो भाई था छोटा, उसको वो भी जल्दी भूल गई, जो अकेला बीमार था, जिसको पहले तो उसका बड़ा भाई छोड़ के चला गया, उसके बाद उसकी जो सिस्टर थी वो भी छोड़ के चली गई। ठीक है बेटा, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट, बाद में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ठीक है जी, जब भी क्लास लगेगी आपकी, अब फ्राइडे को लगेगी, तो बेटा इसके जो वर्ड मीनिंग है, जो आपको जो नीचे नजर आ रहे हैं ये वाले, ये आपका मैं टेस्ट लूंगा उस दिन आके, कीवर्ड्स का। ठीक है जी, ये याद रखना। ओके, हाँ मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आपकी। बेटा से कीवर्ड्स है वो आप याद कर लेना, इसका जब फ्राइडे को टेस्ट लूंगा मैं आपका। ठीक है जी, ओके सर, ओके, बाय बाय।